हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा को लेकर सभी लोग नेगेटिव हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि कनाडा कैसी कंट्री है, वहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, हाउ स्टूडेंट एडजस्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। उसके बाद व्हाट आर द स्ट्रगल्स, उसकी फैमिली को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर, ऑल द होल फैमिली। और क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल आते हैं एक स्टूडेंट से एक परमानेंट रेजिडेंट और एक सिटीज़न बनने को लेकर कनाडा में। तो आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज हमारे पास ईशान सानी है और अपने मदर के साथ यहाँ हमारे ऑफिस में आए हैं, जैन ओवरसीज़। और इस पॉडकास्ट का पर्पस है हर एक स्टूडेंट को ये बताना, ये समझाना, ये एक मैसेज पास ऑन करना कि अगर आप सही ट्रैक पे चलेंगे, अगर आप सही पाथ फॉलो करेंगे, तो कनाडा में भी सक्सेस आपके पास है। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं ईशान की तरह। So welcome you, Ishan. Thank you. Ishan, can you tell a little bit about yourself? So I started my journey in 2016 just after my graduation, and at that time I was quite anxious and excited to start my journey. I did my bachelor's in accounting diploma from Sheridan College HMC campus. That was one of the good colleges, and it's still in the good colleges if you still go with that one. And yeah, from there I started my journey. uh, as we moved from the country, there are some struggles you pass along by. It's just like when you start with the studies, parents are far away from you. You have to manage yourself, do part-time jobs along with the diploma. And yeah, that's all about it. और इंडिया से आपकी स्कूलिंग कहाँ से है और आपके पेरेंट्स क्या करते सो इंडिया से मेरी स्कूलिंग स्वामी संदास पब्लिक स्कूल से हुई है. एंड मेरे पेरेंट्स, my mom is single, like she's a housemaker. My dad, he works in a public sector. So it was okay. I was not being to be very honest, I was from a middle class family. And yeah, that's it all about. तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आप कनाडा पहुँचे। ऑब्वियसली आई बिलीव यू गॉट वीज़ा in 2016 for Sheridan College, and I believe Jan Overseas help you in that. And the purpose is that how much struggle you have to go through get a part-time job. The part-time job thing is not that difficult, as we have as we have seen in Canada. You know what, I'm not getting a job, I'm getting unemployed, blah 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 blah. But the thing is, you have to understand how to apply for the jobs over there. It's just not like I tell them, okay, I got a job over here, everybody will be rushing to that restaurant or any warehouse or something like that. The only thing is you have to keep on looking. It's like there are a lot of sites like LinkedIn, Indeed, that are available in Canada, and you can just always go around. It's not like I have to do any specific job. If I have interest in my accounting, I can look for a part-time job in accounting. It's possible. That's the only thing. The only thing is you don't have to panic. First of all, focus on your strengths. So it means that to be a tech savvy, to know, have a knowledge about a lot of websites, LinkedIn, Indeed, and also you have to get a full-fledged preparation. You can do it here by preparing your resume very professionally. Yeah, correct. That's the thing. And also, it's not like just you go over the sites. Even when you go in the college, there are career activities that take place. There are a lot of resources that will tell you how you have to manage yourself. There are advisors who guide you up. There are resume centers who will help you up. There is a specifically international department specifically set up for you in case you need any assistance with that one. Just go them, take the advantage of them. That's the best I can say. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो हमारे बच्चे जाते हैं वो सिर्फ ये चीज़ रखते हैं कि मैंने वहाँ गया, क्लास लगाई, क्लास के बाद मैं फिर जॉब पे गया या जॉब ढूंढने चला गया या फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए। तो आई बिलीव द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय
each and every college. These things are very common across Canada. Like in every Correct. college, they have international cell. They are resume making. There all the activities are being. A lot of clubs are there. A lot of student associations are there. A lot of activities are there. So, what message you want to give to the student? Like they need to do some spend some time over them. They have to spend some time with them to build more connections. Correct. That's the right thing I would like to suggest it up. Like even when I was in Sheridan, I joined accounting Sheridan Club so that whenever I go over there, I'm a part of it. We are doing on-site booths and giving them knowledge. But the industry is like it's just not like you go over there, stand over there. Not that like that. You go, you set up a booth. The students they will pass by. They will look into your booth. Okay, what's going new in this one? What's the trends? And they will analyze what the market is all about. Even if you get any of the opportunities even on campus, that's an added advantage. And if you get a job as a peer tutor or a mentor, if you are good in specific course, they will pay you up. Yes, it also for the students, any job you get on campus is above and additional the permissible limits. Correct. So the Canadian immigration, they don't consider the job that is done on in campus. That's not considered it up over the eligible 24 hours right 24 now and hours. 20 hours Correct. when you were there. Correct. सो मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कितने पैसे खर्च किए ईशान को जब बाहर जाना था इन 2016? तब जीआईसी था और कॉलेज की फ़ीस एक सेमेस्टर की थी। और उसके बाद जब ये पूरी जर्नी स्टूडेंट से पीआर तक, तो आपने इसको कितने पैसे आपको आपको आपने भेजे इनको, और आपने इसको किस तरह से और सपोर्ट करा? बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सिक होता है, थोड़ा एग्जॉस्टेड होता है, तो आपने कैसे इसको सपोर्ट करा? जब ईशान 2016 में गया तो हमने एक जीआईसी और इसकी एक सेमेस्टर की नियर अबाउट 11 लैक्स थे तब एक्सपेंस वो दिया था। और बस हमने सिर्फ एक बार इसे 2 लैक्स भेजे थे। इसके एक सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर था और इसने अपनी फ़ीस खुद ही पे की। हमने सिर्फ जो 11 लाख पहले भेजे और 2 लैक्स बाद में भेजे। इसने खुद वहाँ अपना हार्ड वर्क किया। हमें कभी इसने नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए, और ये खुद ही जॉब्स करता रहा और इसने अपनी फीसिस खुद ही पे की वहाँ, हमने नहीं इसे दी। और वहाँ ये नहीं होता कि बच्चे जब गए थे तो ये एक बार बीमार भी हुआ था, तो फिर ये कि इसे यहाँ से हम मॉरली सपोर्ट करते थे। और इसके जो मेट्स थे साथ में, इसके साथ रहते थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर देखो आपके जो संस्कार होते हैं ना, आपका बच्चा कहीं भी चला जाए वो उसके साथ जाते हैं। मोरली की कहाँ कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जब घर छोड़ के जाते हैं यहाँ से, बेसिकली पंजाब के बच्चे मैंने वहाँ देखे हैं। दिल्ली बॉम्बे के बच्चे काफ़ी एडवांस्ड हैं और वो जैसे ना मैच्योर्ड हैं। हमारे पंजाब के बच्चे जब यहाँ से, इवन गर्ल्स भी जाती हैं, मैंने वहाँ देखा है। अभी इतनी देर वहाँ रहने के बाद मैंने ये देखा है कि इनको होता है कि हमें पता नहीं कितनी फ्रीडम मिल गई है। और हमारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, अभी 8 इयर्स हो गए हैं, लेकिन बच्चे जब इंडिया में आते हैं ना तो हमारे नेबर्स कहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल चेंज नहीं हुए। मैंने कहा कि हमने उन्हें चेंज के लिए नहीं वहाँ भेजा। जो उनके संस्कार हैं ये उनके थ्रू आउट लाइफ अब यही रहेंगे कि जो हमने बच्चों को एक बार डाल दिया ना इनके संस्कार, बच्चों ने चाहे वहाँ एज ए बैर टेंडर भी काम किया है, लेकिन कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, कभी That's नॉन वेज को हाथ नहीं लगाया। that's really good inspiration and बच्चे value you have given to your kids. I believe your daughter is also in Canada and she also gone on an international student and now become PR. Sister, yeah, Sister. she's also my. Sister. She went in 2019 18. She went in 2018 December. She started 2019 January. batch. Okay. So she
went to Douglas College in Vancouver Okay, Vancouver. and in associate in science, Okay. mainly as a biology. She did 2 years in Douglas, and after that, Corona just came in, Yes. spoiled everything. But touchwood, everything remained well, and she got PR during that time. And now she's back into her field. She already just completed the diploma that's required to start for registered nursing Oh. program. So yeah, she got the now she got the opportunity to go for registered nursing, and she has already got the admission for September 2025 this year. Oh, that's good. So there, if you अगर आप पढ़ना चाहते हैं, if you want to do study, even after doing your diploma, you can do graduation after getting your PR. It will reduce your expenditure, and also after doing accounting, associate of science, she can move into nursing field also. So there is a lot of opportunity, and I believe Ishan, you are also pursuing your bachelor degree after your PR. Yeah, definitely. I just started. I mean, I am still in bachelor's of accounting. Like मैं full time job करता हूँ even in logistics department, but on the side one, so I have made my schedule in such a way कि जब मैं job से free हुआ, so I take 3 days 3 courses, and उसको आफ्टर जॉब कंटिन्यू किया. 3 hours का सेशन रहता है जैसे हर एक कोर्स का होता है. एंड या अगर आपको यू थिंक कि आपका वीकडे स्केड्यूल आपको फिट नहीं कर रहा, देयर आर सम ऑफ द कोर्सेज जो इवन द वीकेंड्स पे भी applicable Even in the होते हैं. evenings, they are offering the They're- courses. Yeah, like I finish my work at 4 and I take the uh, scheduled course at 6 p.m. So वो 6 to 9 वाला ऑप्शन बेस्ट है. So between 4 to 6 आपके पास 2 hours का गैप हो गया and you get yourself at a relaxed position. उसके साथ बहुत हेल्प होता है. Means as an international student, say परमानेंट रेजिडेंट बनना, परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन बनना, तो इस पूरी जर्नी में स्ट्रगल तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी हर जगह स्ट्रगल है, एंड कनाडा में भी स्ट्रगल है. सो कैन यू टेल अस इन विच फील्ड यू हैव डन योर पार्ट टाइम वर्क? As you have mentioned, you work in hospitality also, in logistics also. Yeah, like I had my diploma in accounting, but I had interest in hospitality because that was something different that I had not even looked into that. So I learned all the basics till the advanced, and then उधर से from Ontario to BC मुझे move किया गया कि जहाँ पे मैं part time job करता था because they were opening a new branch in BC, and the market is quite vast. The hospitality market नहीं रुकने वाली. बिल्कुल. एंड उसके बाद जब फर्स्ट रेस्टोरेंट जैसे उधर ओपन करवाया एज अ बार मैनेजर, उसके बाद आफ्टर 2 years they were having another project. They offered me up, okay, will you like to go with up? I was like, okay, definitely, sure. I just went with that one, opened that project as well, and then उसके बाद मैंने कहा कि okay, थोड़ा बैकअप फील्ड ऑफ एजुकेशन जिसमें मैंने परस्यू करना आगे, उसके लिए कंटिन्यू करूँ. सो देन आई चेंज. आई वाज लाइक नहीं यार, अब हॉस्पिटलिटी में काफ़ी हो गया, नाउ लुक फॉर समथिंग डिफरेंट. तो फिर उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक्स में देखा. लॉजिस्टिक्स में आपको जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, या कोई भी जॉब के लिए हो आपको देखना पड़ता है कि कैसे आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, आपके जो रिक्वायरमेंट्स आप उनको मीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. और अगर आप नहीं भी कर पा रहे, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट टूल राइट नाउ. लिंक्डइन पे जाओ, अपने आप कोर्सेज डालो, या आप कौन सी जॉब पोजीशन के लिए देख रहे हो, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो. अगर आपको लगता है अच्छा यू आर डूइंग गुड इन दिस वन, गो फॉर दैट वन. इफ़ यू आर लैगिंग इन समथिंग, आप उसका सर्टिफिकेशन कर लो सो दैट आपको नॉलेज मिल जाए. Excel knowledge is the deepest one that you have to have it. I mean, ये अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसमें जा रहा हूँ, पर या जितना भी आपको नॉलेज होगा वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत हेल्पफुल करेगा. इट्स नॉट लाइक कि अगर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है. आई मीन टेक सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इट्स वास्ट. यू कैन डू वंडर्स इन दैट वन. एंड ऑल्सो ईशान, अगर मैं ये पूछूं कि आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गए होंगे,
बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ क्लासमेट्स हैं या आपके वहाँ देखे होंगे, तो क्या डिफरेंट आपकी अप्रोच रही उनके मुकाबले? सो हर एक को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं गया, 2-3 जाने जो अगर मेरे साथ थे, या लाइक डाइवर्सिफाइड है। आपको अपना एक गोल सेट करना है कि दैट अगर आपने ये डिप्लोमा करना है या ये फील्ड में सेटअप करना है, सो सेट योर गोल, गो थ्रू द पाथ, यू विल फेस द हर्डल्स। आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, इवन आपकी जब फैमिली ओवरसीज होती है तो आपको वो भी होता है यार कि वो कैसे कर रहे हैं, और कभी कभार वो आप होम सिक फील करोगे। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी नहीं करेगा, कोई किसी पॉइंट पे आपको जैसे याद आएगी, अच्छा यार कभी फेस्टिवल हो गया, पर उस टाइम आपको डगमगाना नहीं है। सबसे पहले पैनिक नहीं करना, अपने आप को काम डाउन करो। उसके बाद आप कभी भी आई वुड से बैड हैबिट्स में मत जाओ, बिल्कुल सही बात। बिकॉज अगर आप बैड हैबिट्स में जाओगे, like consumption of alcohol, drugs, street drugs, or something like that, I consider those ones as a bad habit, or other like clubs like that. Clubs once in a while is okay, but जो ड्रग कंजम्पशन है उस पे मत जाओ। आपके साथ वाले करेंगे, the only thing is कि आपको नहीं करने, you have to avoid those ones. तो वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, तू भी कर, तू भी कर, तू भी देख, ट्राई कर, तू भी कर, तो वी हैव टू बी नॉट इंडल्ज इनटू दिस। करेक्ट। जब आपकी कम्युनिटी होती है उधरली साइड, दे विल ऑलवेज यार कोई नहीं आज मेरी तरफ, पर नहीं, पहली बारी वो देंगे, फिर आप उस ट्रैप में फंस जाओगे कि यार आप कहोगे चलो यार ये करते हैं। इसमें आपको हमेशा आउट रहना और आपको सिर्फ अपना फोकस, गोल अपना क्लियर रखना है कि आपको उस गोल कंट्री अपना में clear जाके रखना है। सक्सेसफुल होना है, सेटल होना है, एज ए एग्जाम्पल बनना है। एंड हाउ यू गेट योर, लाइक आई नो यू गॉट योर पीआर, सपोज टू गेट योर पीआर इन 2020, बट बिकॉज ऑफ कोविड इट्स एक्सटेंडेड। Yeah, it just got delayed because offices सारे बंद हो चुके हुए थे, लिमिटेड स्टाफ चल रहे थे, इवन इमिग्रेशन के भी, तो it just got a bit delayed to 2021, but all went smooth. It's also कि like इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लेके गए हुए हैं राइट नाउ, बिकॉज रूल्स चेंज हो रहे हैं परमिट्स के रिगार्डिंग। पर द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप अपने फोकस पे रहोगे ना, नथिंग इज़ हार्ड। Nothing is hard. Even I would suggest right now tech sector is the best one, tech and healthcare. बाकी sectors भी हैं, but keep on looking. So you add your skills into that. Yeah. Even from healthcare, even you are studying, you want to get some kind of certification in health category, you go and enroll in some private institution to get your additional certifications, do some community services. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं बच्चों को कहता हूँ कि दे आर नॉट डूइंग वॉलंटियर सर्विसेज। आई बिलीव दैट प्लेज अ लॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर ग्रोथ एज ए स्टूडेंट ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। या क्योंकि जब आप अपना रेज्यूमे भी बनाते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि भाई मैंने इधर वर्क एक्सपीरियंस मेरा क्या क्या है। इवन फ्रीलांसिंग की हो या वॉलंटियरिंग की होगी, वो आपको नॉलेज देगी, आपको एक्सपीरियंस देगी कि इन फील्ड कैसे का होता है। डोंट थिंक कि यार कि नहीं मुझे वो पे नहीं कर रही, सो डोंट गो विद दैट वन। आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ चलेगा, आपके जो भी इन फील्ड स्किल्स हैं वो आपके साथ चलेंगे हर टाइम पे। आपको मीन्स ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ यार नहीं, मैं अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ वही करूँ। थोड़ा सा टाइम उधर के कंट्रीब्यूट करना इज़ द बेस्ट थिंग। इवन इन कम्युनिटी, इन चर्चेज, गुरुद्वारा, लाइक उधर लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज जाके आप विज़िट करो। और उसके बाद जैसे सिटी ऑफ, जैसे मैं डेल्टा में रहता हूँ राइट नाउ, सिटी ऑफ डेल्टा एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती हैं, उनमें उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। सो यू शो अप कैसे उनके ऑपरेशंस करते हैं, कैसे आप उसमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हो। इट प्लेज अ गुड रोल and you make good connections to get Yeah, new jobs. correct. Because when you go in these type of events,
HR रिक्रूटर्स भी आए होते हैं, बिल्कुल सो आप उनके साथ जब कम्युनिकेट करोगे यू गेट अ गुड सर्कल एज वेल, कि आपको कोई नहीं जानता, बट आप जब कम्युनिकेट करोगे, जब आप उनको बताओगे अच्छा मैं ये हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, दे विल डेफिनेटली लाइक ओके लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन. LinkedIn, and then this that is the best source right now for setting up, getting a jobs connection with the HRs. Even in our line, we have LinkedIn very professionally, which is we connect to a lot of colleges, recruiters, and directors over there, and it helps us a lot in our business Helps a too. तो ईशान, अब after getting your PR, you're a bunch of citizen, you got married this month, Okay, yeah, just last week. last week. Congratulations for Thank that. you so much. And मैम, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स स्केर्ड हैं कि कनाडा में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि आपके तो दोनों बच्चे कनाडा में PR हुए हैं, तो पेरेंट्स को क्या आप मैसेज, क्या कन्वे करना चाहते हैं अपनी तरफ से? पेरेंट्स के लिए यही है कि देखो, अगर आपके बच्चे इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो कहीं भी आप रहोगे, स्ट्रगल तो आपको करना ही है। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको ऐसे तो कुछ नहीं, सब कहते हैं सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, बिल्कुल है ना। तो आप अपने बच्चों को अच्छे, मैं तो कहती हूँ एक संस्कार दो, और बच्चों को ये हो कि वहाँ जाते, जैसे बच्चों को मैंने देखा है कि जाते वहाँ पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो, आईफोन्स ले लो, इतनी क्रेज़ है अभी। चलो इंडिया में भी है बच्चों को, लेकिन वहाँ जाके पता है इजीली सब कुछ मिल जाता है ना। तो बच्चों को पहले यही समझाओ कि देखो बच्चों, पहले अपना जाके स्टैंड हो, तो वहाँ बहुत कुछ है। वहाँ हार्ड वर्क को वैल्यू है, हार्ड वर्क करते हो ना, जितना हार्ड वर्क करते हो उतनी उसका पे करती है, वहाँ की गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि आप कितने कैपेबल हो। आपके बच्चे में अगर कैपेबिलिटी है तो वो ज़रूर वहाँ जाके सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अब यहाँ कह रहे हैं, जहाँ हम देखते हैं ना, यहाँ पे यहाँ के हमारा मीडिया इतना कुछ बताता है, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ऐसे पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, वो जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे पीछे ही आपने देखा था कि वो जैसे मंदिर गुरुद्वारा का, वहाँ पे किसी में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मीडिया में ही होता है। वहाँ पे एक्चुअली में ऐसे कुछ नहीं होता। अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है तो वो सक्सेस हो सकते हैं वहाँ पे। तो ईशान, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज तुम कनाडा से आए हो, आज की डेट में वहाँ पे क्या सिनेरियो है? जैसे लोग कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। इवन मेरे को लगता है आपने भी बहुत सारे बच्चों को हायर किया होगा, तो क्या क्या सिनेरियो है जो हम यहाँ से देख रहे हैं और वहाँ पे एक्चुअल में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जैसे कहते हैं ना, एक भेड़ चाल से चल जाती है। अगर एक ही बच्चा कहीं अप्लाई कर रहा है, वो अपने दोस्तों को भी कहेगा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उसके लिए मैं कहूँगा आप वेरियस जगह पे देखो, अपना देखो कि कहाँ पे मिल सकती है। इट्स नॉट कि एक जाना उधर गया तो सभी उधर चले जाएंगे, पर द राइट थिंग इज़ कि अपने आप को देखो कि जो भी जॉब्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इंडीड पे देख लो। इंडीड जस्ट लाइक उधर की लोकल साइट है, मीन्स कनाडा में भी चलती है। उसके ऊपर आप देखते रहो। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर सिर्फ कोई स्पेसिफिक एरियाज़ की जॉब है, उधर हर एक टाइप की जॉब है। आप अप्लाई करो, रिक्रूटर से कॉल आते हैं आपको, ईमेल्स आएंगी। इवन मैंने भी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक जैसे वेयर हाउस में, बिकॉज ऑफ लाइक कि सैटरडे संडे वेयर हाउस में आप कर सकते हो, तो मैंने भी अप्लाई किया था। आई गॉट कॉल इन 2 days, 2 दिन में कॉल आ गई थी। And also, I believe, how much desperate you are to do the jobs, how much effort you put from yourself. कि जैसे कहते हैं ना कि कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के आपको पास कुएं की जाना। तरफ जाना पड़ेगा। कोई अगर अभी कह रहा है कि जॉब्स नहीं है, मेरे को भाई जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड रह रहा हूँ, मेरे को घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, द थिंग इज़ कि आप अपनी तरफ से एक कोशिश तो करो। एक कोशिश करोगे, आपको एक जगह नहीं मिली तो आप दूसरी जगह जाओ कि मैंने यार ये इस बैकग्राउंड में किया हुआ है। आप कॉलेज में अप्लाई करो, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। That is through volunteer work, and through volunteer work, volunteering, you can make a lot of connections. Yeah, even telecommunication jobs भी हैं। Yeah, I see a lot of when I was in Canada,
certainly a student came to me. He went through from us Jain Universities. He's working in Rogers. So a lot of examples are there. A lot of students are working in different field of work, and it is not that the Canada is bad, situation is bad. It is the amount of hard work. कहीं अगर हम शायद हार्ड वर्क में थोड़ा सा कमी रह रही है, that will made us more struggling, I believe. या बिकॉज आप जितना हार्ड वर्क डाली जाओगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। कि कहते हैं ना, जितनी आप संतुष्टि से काम करते हैं और भागा दौड़ी में काम करते हैं उसमें फर्क तो होता है। बिल्कुल। बस यही चीज है कि आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, और जो आपका जैसे आपने जो फोकस सेट किया हुआ है कि मुझे इधर पॉइंट पे पहुंचना है, उससे कभी डाइवर्ट मत हो। जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस आएंगे, घबराना नहीं। So those students who want to go to Canada, you ready? Get ready to face the challenges. But जैसा ईशा ने कहा, घबराना नहीं है. You have to focus on, keep on doing the hard work. Thank you, thanks a lot for sparing time. Thank you, ma'am. आपने भी टाइम निकाला. Thank you. Thank you.